Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss session number 1 of the unit 4 web applications and security, and session number 1 is working with accessibility options for class 10 IT 402. The topics which we are going to discuss in this video are impairments and its types, computer accessibility, various types of features like sticky keys, filter, toggle and serial keys, and other features like sound sentry narrator, high contrast cursor, mouse keys and magnify. So let us understand about these terms and get to know them one by one. So students, सबसे पहले हमारी term है impairment. What is the meaning of impairment? Any problem in any part of the body due to which a person is not able to work properly, that is known as impairment. हमारी बॉडी में किसी में पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से पर्सन कोई भी काम नहीं कर पा रहे अच्छे से, या तो हाथ में प्रॉब्लम है या आईज में प्रॉब्लम है या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से द पर्सन इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली or to use the technological devices like computer or phone properly, that is known as impairment. Now there are various types of impairment. Like first one we are having is cognitive and learning disabilities. Like जब माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को समझने में, चीज़ों को समझने में या चीज़ों को ग्रास्प करने में प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया हो जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है या ऑटिज्म हो जाता है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाना या चीज़ों को समझ नहीं पाना, दैट विल कम अंडर कॉग्निटिव एंड इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. सेकेंड इम्पेयरमेंट की बात करें, दैट वी आर हैविंग इज विजुअल इम्पेयरमेंट. लाइक जिनको देखने में प्रॉब्लम है, लाइक देयर इज अ लो विजन, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, देयर इज अ पार्शियल ब्लाइंडनेस, और इट मे बी कंप्लीट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, दैट विल कम अंडर विजुअल इम्पेयरमेंट. थर्ड आती है हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम. Sometimes it can be deafness and sometimes it can be that people are not able to hear the computer sounds properly. ठीक है. And the last type of impairment is motor or dexterity impairment. Motor is related to motion. जब हमें अपने limbs को यानी कि hands, feet, legs इनको move करने में problem हो due to any of the reason, like due to paralysis or due to cerebral palsy or due to carpal tunnel syndrome. कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जब हमारे रिस्ट की कोई नर्व प्रेस हो जाती है जिसकी वजह से हम उसे मूव नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, दैट इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम. एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंजरी होने की वजह से भी वी आर नॉट एबल टू मूव आवर लिम्स प्रॉपरली, सो दैट इज वाई उसकी वजह से काम नहीं कर पाते हैं, दैट विल कम अंडर मोटर और डेक्सटैरिटी इम्पेयरमेंट. ठीक है. तो हमने 4 तरीके की इम्पेयरमेंट पढ़ी है: कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड मोटर और डेक्सटैरिटी इम्पेयरमेंट. अब इन सब इम्पेयरमेंट की वजह से when the person is not able to use the computer system properly, so for that purpose कंप्यूटर में कुछ ऐसे फीचर्स डाले गए, लाइक करेंटली हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिससे कि these people who are impaired with any of the things can work properly. So we have two things. One option is in Windows 7, one is in Windows 11. So Windows 7 में you can go to the start button, then you can go to the control panel, and then we have the option of accessibility options. That window will come, from there you can choose any of the option. और अगर Windows 11 की बात करें तो वहाँ पे आपको settings में जाना है और accessibility option में जाना है. ठीक है. और shortcut की ये Windows 7 और 11 दोनों के लिए है. You can use the shortcut की Windows plus U. अब यहाँ पे we'll go to the settings. I am having Windows 11, तो यहाँ से हम settings में जाएंगे और settings में जाने के बाद here you can see the option of accessibility. So from here you will see all the accessibility options, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि this is for vision, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम है. ठीक है. फिर सुनने में प्रॉब्लम है तो hearing के अंडर जो भी आपकी आएंगी वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है. इसी तरह से नीचे आप जाएंगे, you will see various types of option, लाइक इंटरैक्शन से रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड है, माउस से रिलेटेड है. ठीक है. सो these are the various options with the help of which we can open this accessibility feature, and the shortcut key is Windows plus U. Now if we talk about the next thing, what is the meaning of computer accessibility? Basically computer accessibility यानी कि कंप्यूटर को एक्सेस कर पाना, यानी कि उसे यूज कर पाना. It refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability.
even if a person is disabled, still the person is able to use the computer system in an interactive and friendly manner. That is known as computer accessibility. कोई पर्सन अगर डिसेबल्ड भी है, कोई भी इम्पेयरमेंट है उसे, फिर भी वो पर्सन कंप्यूटर सिस्टम को इंटरैक्टिव और फ्रेंडली वे में यूज़ कर पा रहा है, दैट इज नोन एज कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी. बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, लेकिन जब भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, सो इट enables that person with the disability or impairment to use a computer. एंड कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन बाय वन द फीचर्स. सबसे पहले आपको मिलेंगे स्टिकी कीज विच आर इन द कीबोर्ड टैब. ठीक है. यहाँ पे आप देखो कि हेयर वी आर हैविंग इन द कीबोर्ड ऑप्शन. अभी हमारे पास मेन 4 ऑप्शन है यहाँ पे: विजन, हियरिंग, इंटरैक्शन एंड हियरिंग एंड इंटरैक्शन. तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड में जाना है एंड फर्स्ट इज माई स्टिकी कीज. ठीक है. तो अब यहाँ से स्टिकी कीज का क्या काम है? ये जो विंडो आपको यहाँ पे दिख रही है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की एंड वेरियस टैब्स आर देयर, ये हमारी विंडोज 7 में होती है. ठीक है. तो अभी हम विंडोज 7 के भी ऑप्शंस को देख रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द विंडोज 7 वो भी समझ सके कहाँ से इसे एक्सेस करना है, एंड जिनके पास अपर वर्जन है वो भी इसे चेकआउट कर सके. तो स्टिकी कीज क्या है? इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प द यूजर विद द फिजिकल डिसेबिलिटीज, but it is also used by others as a means of reduce a repetitive strain. अब स्टिकी कीज क्या है? जिन लोगों को फिजिकली कीबोर्ड को यूज करने में प्रॉब्लम है, दैट कैन बी एन इंजरी, लाइक जब भी वो फिंगर से या हैंड से कीज को प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है. तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम स्टिकी कीज को एक्टिवेट कर देते हैं. तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है स्टिकी कीज, तो इससे होता क्या है, जो भी आपकी मॉडिफायर कीज होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है या विंडोज की है, वो एक्टिवेट हो जाती है. तब तक एक्टिव रहती है जब तक आप कोई दूसरी की प्रेस नहीं करते. सो दैट इज नोन एज स्टिकी की. अब इसका यूज कैसे है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन. जैसे कि हमने यहाँ पे नोटपैड को ओपन किया. अब यहाँ पे हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, लाइक हमने लिखा यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स. जनरली व्हाट आई डू इज, अगर मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, आई विल प्रेस कंट्रोल ए फ्रॉम माई कीबोर्ड, शॉर्टकट की इकट्ठा प्रेस किया. बट देर आर पीपल हु हैव द प्रॉब्लम इन प्रेसिंग बोथ द की साइमल्टेनियसली. जिनके हैंड्स में, फिंगर्स में प्रॉब्लम है, कीबोर्ड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो दोनों कीज को इकट्ठे प्रेस करने में उनको प्रॉब्लम होगी. सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करते हैं? स्टिकी कीज को एक्टिवेट करते हैं. विंडोज 7 में कीबोर्ड टैब के अंदर यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ स्टिकी कीज. आप यहाँ से चेक मार्क कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास जो विंडोज 11 है, इसमें हम यहाँ स्टिकी कीज पे जाएंगे और यहाँ से इसे ऑन कर देंगे. अब ये ऑन हो गई. अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ से आपने कंट्रोल प्रेस किया, अभी सिर्फ कंट्रोल को प्रेस किया, लीव कर दिया. नाउ आई विल प्रेस माई ए की एंड लीव इट. तो ये क्या हुआ? इकट्ठा हमें प्रेस नहीं करनी पड़ी, बट जब हमने अलग अलग प्रेस करी तो कंट्रोल आपकी एक्टिवेट तब तक रही जब तक हमने ए को प्रेस नहीं किया. सो दिस इज हाउ स्टिकी कीज गोइंग टू वर्क. ठीक है. दोबारा से देखते हैं. यहाँ पे हमने लिखा हाय, दिस इज क्लास 10 chapter. Again, if I press the control key, अब now leave it and press A. So this whole will be selected simultaneously. ठीक है. So this is how sticky keys work. अब हम इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं, like this. ठीक है. Now the next is our filter keys. Same, you will find it in the filter keys, that is the keyboard option. फिल्टर कीज एज अ नेम सजेस्ट, ये फिल्टर करेगा. किस चीज को फिल्टर करेगा? जो रिपीटेड कीज आपने प्रेस की होंगी उसे फिल्टर करके सिर्फ एक बार लेगा. तो फिल्टर कीज अगेन यू विल फाइंड इन द कीबोर्ड टैब. इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर द ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स. बहुत कम एकदम से आपने की प्रेस की है या रिपीटेड टाइम्स आपने किसी की को प्रेस की है, तो उस केस में जो आपकी फिल्टर कीज हैं वो क्या करेंगी? उस पर्टिकुलर की स्ट्रोक को एक बार लेगी, ताकि द पर्सन्स हु आर हैविंग द हैंड ट्रेमर्स, जिनके हैंड में शेकिंग होती है यार,
शिवरिंग होती है, उनके लिए टाइपिंग जो है वो ईजी हो जाए। इसको यूज़ कैसे करते हैं, आप अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, कीबोर्ड में आप ऑलरेडी हैं ही, स्टिकी कीज के नीचे ही आप देखोगे फिल्टर कीज, यहाँ से आपने इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इसके सब ऑप्शंस पे आएंगे एंड इसके बाद यहाँ पे यू विल सी द ऑप्शन हियर इग्नोर क्विक की स्ट्रोक्स। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, वेट बिफोर एक्सेप्टिंग अ की स्ट्रोक, देन इग्नोर अनइंटेंडेड की स्ट्रोक, इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक। रिपीटेड वाले की स्ट्रोक को आप यहाँ से ऑन कर लोगे और यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर दोगे कि मान लीजिए मैंने एक लेटर प्रेस किया और दोबारा वो लेटर प्रेस किया, तो दोबारा अगर प्रेस करना है तो वो कितना वेट करे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब होगा क्या, सपोज हम नोट पैड पे आते हैं और हम पे लिखना है CLS। अब जैसे ही मैंने 2 टाइम्स S प्रेस किया, ये सिर्फ मुझे एक बार दिखा रहा है, दोबारा S प्रेस करने के लिए इट विल वेट फॉर 0.5 सेकेंड्स। अब मैं दोबारा प्रेस करूं, इट विल वर्क। मान लीजिए मुझे हेलो लिख, आई एम राइटिंग LLO, लेकिन ये आ रहा है एक बार, बिकॉज हमने यहाँ पे जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स वाला ऑप्शन है उसे ऑन किया हुआ है और हमने ये सेट किया हुआ है कि रिपीटेड जब भी कोई की स्ट्रोक प्रेस हो तो उसको टाइप करने से पहले वो 0.5 सेकेंड्स का वेट करे। तो अगर L प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, नाउ आई एम प्रेसिंग O 2 टाइम्स, 2, लेकिन वो एक ही बार आ रहा है। तो इसने क्या किया, जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स हैं उनको फिल्टर कर दिया, विच इज द वर्क ऑफ द फिल्टर कीज। ठीक है, तो हमने ये कैसे किया, सेटिंग्स में कीबोर्ड टैब में यू हैव द ऑप्शन ऑफ फिल्टर कीज, यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे और जो इसका रिपीटेड की स्ट्रोक्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप इसका टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, वेट बिफोर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट रिपीटेड की स्ट्रोक, पहली बार आए तो हमें कितना वेट करना है और अगर बार बार आए तो कितना हमने वेट कराना है। ठीक है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से फिल्टर कीज को ऑफ कर देते हैं। So the next type of key which we are going to understand is the toggle key. It is a feature of Microsoft Windows. Basically toggle keys कौन सी होती हैं, जिनको एक बार कीबोर्ड से प्रेस करने पे वो ऑन हो जाती हैं और नेक्स्ट टाइम प्रेस करने पे वो ऑफ हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ये कीज है कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रोल लॉक की। अब ये कैसे वर्क करती हैं, इट इज़ बेसिकली डिजाइन फॉर द पीपल हु हैव द विजन इम्पेयरमेंट और द कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, जिनको देखने में प्रॉब्लम है या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट वो साउंड को सुन के उसको पता लगा सकते हैं कि कोई भी टॉगल की ऑन हुई है या ऑफ हुई है। जब ऑन होती है तो उस केस में हाई साउंड इज एमिटेड एंड जब ऑफ होती है तो उस केस में लो साउंड एमिट होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके लिए अगेन हम सेटिंग्स में जाएंगे इन द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन एंड द कीबोर्ड टैब, यहाँ पे टॉगल कीज है, यहाँ से हम इसे ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये ऑन करने के बाद आप कहीं पे भी वर्क करेंगे एंड सपोज दिस इज माय डेटा, इफ आई प्रेस कैप्स लॉक की, साउंड आई एंड आई कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ किया तो ऑफ करते ही लो साउंड आई और ऑन करते ही इसमें हाई साउंड आई। ठीक है, सेम वे आप की को ऑन करते हैं तो हाई साउंड आएगी और नंबर को आप ऑफ करते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग फ्रॉम द न्यूमेरिक कीपैड जो हमारे कीबोर्ड पे राइट साइड में होता है। तो ऑफ करने पे लो साउंड आती है और ऑन करने पे आपकी हाई साउंड आती है। ठीक है, सो इस तरह से टॉगल कीज हमारी काम करती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज अ सीरियल की। अब जो आपका कीबोर्ड टैब है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको 3 तरह की कीज मिलेगी, स्टिकी कीज, फिल्टर कीज और टॉगल कीज। और जो सीरियल कीज है वो हमें जनरल टैब में मिलती है, लेकिन इसमें विंडोज 11 में वी आर नॉट हैविंग द जनरल टैब और इसमें ये ऑप्शन हमें डायरेक्टली यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। बेसिकली अगर आप इसे विंडोज 7 में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में जनरल टैब है जिसमें सीरियल कीज का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जिसे आप चेक मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब सीरियल कीज बेसिकली क्या होती है, सीरियल कीज एक ऐसी एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जिनको कीबोर्ड, माउस या दोनों चीज़ों को, दोनों डिवाइसेस को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। अगर सिर्फ कीबोर्ड को यूज़ करने में प्रॉब्लम है तो आप उस केस में स्टिकी कीज का यूज़ कर सकते हैं या फिल्टर कीज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको विजन इम्पेयरमेंट है तो उस केस में टॉगल कीज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड और माउस दोनों को यूज़ करने में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सीरियल कीज हमारी काम आती है। ठीक है, बेसिकली सीरियल कीज को एक्टिवेट करने से क्या होता है,
हम इसके अंदर कुछ स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, सिप, पफ एंड ब्रेथ स्विचेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली इनहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिप डिवाइसेस, और पफ डिवाइसेस की हेल्प से एक्सहेल करते हैं टू ब्रीथ इन एंड टू ब्रीथ आउट। इसकी हेल्प से वी प्रोवाइड द इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू द सीरियल पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्यूब को सिप करते हैं तो उससे एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, और अगर पफ करते हैं, सिपिंग मीन्स इनहेल करते हैं, तो एक डिवाइस एक्टिवेट होता है, और अगर एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो उस केस में दूसरा डिवाइस एक्टिवेट होता है। अब देखिए, इस केस में इस तरह का आपका ये डिवाइस होता है, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है। ये जो ट्यूब है, दिस इज इन द पर्सनस माउथ, ठीक है। इस तरह से ये ट्यूब पर्सन के माउथ में होती है। इसका एक एंड जो होता है वो हमारे सीपीयू का जो बैक साइड पोर्ट होते हैं उससे कनेक्टेड होता है, और इसी से हमारा कोई भी डिवाइस अटैच होता है, जैसे कि जॉयस्टिक वगैरह होता है। तो जैसे ही आप इसमें ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसकी हेल्प से जो माउस का पॉइंटर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मूव करता है, और आप उस केस में पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट कर पाते हैं या टाइप कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए तो कीबोर्ड चाहिए, बट उसके लिए आप अपने सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करके और वहाँ से पर्टिकुलर कैरेक्टर को या लेटर को या नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जॉयस्टिक की हेल्प से, जैसे हम माउस से मूवमेंट करते हैं, आप इसके पॉइंटर को मूव कर सकते हो। इसकी प्रॉपरली वर्किंग को समझने के लिए आई हैव अटैच्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ वन ऑफ द वीडियो। आइदर यू कैन वॉच द फुल वीडियो और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2:32। टाइमिंग जो है 2:32 से आप चेकआउट कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट वीडियो, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये डिवाइस कैसे वर्क करते हैं, और इनको वर्क कराने के लिए हमें सीरियल कीज को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो विंडोज 7 में एक्टिवेट करने के लिए आपके पास ये फीचर है, दैट इज इन द जनरल टैब लाइक दिस, ठीक है। सो यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now we'll move to the next topic, that is the sound tab. अब there are some people who have the problem in listening to the things, जिनकी auditory impairments है, यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, उनके लिए हमारे पास जो फीचर है that is sound sentry। अब जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं प्रॉपरली, तो उस केस में उनके लिए साउंड सेंट्री क्या करता है, विजुअल वार्निंग जनरेट करता है, यानी कि देख के उनको पता लगता है कि कोई ना कोई सिस्टम में साउंड जनरेट हुई है। सच एज या तो आपका टाइटल बार ब्लिंक करता है, या बॉर्डर फ्लैश होता है, या आपकी जो एंटायर स्क्रीन है वो फ्लैश होने लग जाती है जब भी कंप्यूटर में कोई साउंड आती है। तो इस केस में क्या होता है, दिस इज द वर्क ऑफ द साउंड सेंट्री फीचर। अब कई बार आपको ये कुछ विंडोज में आपको साउंड सेंट्री के नाम से मिलेगी, और इस केस में आपको ये हियरिंग टैब में, देखो जैसे यहाँ पे साउंड के प्लेस पे हियरिंग आ रहा है, इसमें आपको ये मिलेगा। आप यहाँ से ऑडियो ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन इज हेयर, यहाँ पे हमारे पास मोनो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो इस केस में हम इसे क्या कर देंगे, इट इज सेइंग फ्लैश माई स्क्रीन ड्यूरिंग ऑडियो नोटिफिकेशंस। यहाँ से आपने इसको कर देना है फ्लैश द एंटायर स्क्रीन। टाइटल बार भी कर सकते हो या एक्टिव विंडो भी कर सकते हो, तो हमने इसको कर दिया एंटायर स्क्रीन। अब हमारे सिस्टम में जब साउंड आती है तो वो कैसे आती है, जैसे अभी हमने देखा टॉगल कीज से आ रही थी, तो एक बार हम कीबोर्ड पे जाते हैं और टॉगल कीज पे जाएंगे, और यहाँ से उसको हम ऑन कर लेंगे, ये ऑन ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगेन वी विल गो टू द नोटपैड, जैसे कि इफ आई प्रेस द कैप्स लॉक की, तो साउंड यहाँ पे जनरेट, लेकिन जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है उनको साउंड नहीं सुनाई दी। तो इस केस में आपने देखा कि मैंने इसको ऑफ किया, ऑन किया, तो जो मेरी एंटायर स्क्रीन है वो फ्लैश हो रही है। तो फ्लैश होने से द पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि सिस्टम ने कोई ना कोई साउंड जनरेट की है। सो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, दैट इज साउंड सेंट्री, विल वर्क। विंडोज 11 में ये आपको हियरिंग टैब के अंदर मिलेगा इन द ऑप्शन ऑफ ऑडियो फ्रॉम हियर, ठीक है। और अगर आप फ्लैश नहीं कराना चाहते देन यू कैन मेक इट नेवर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन अंडर द साउंड टैब इज नरेटर। नरेटर आई थिंक यू मस्ट हैव यूज्ड ऑल्सो। तो नरेटर कौन होता है, पर्सन हु टेल्स यू द स्टोरी। तो नरेटर एक ऐसा फीचर है दैट कन्वेज द इनपुट विद द हेल्प ऑफ ऑडियो। जो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाएगा, एंड बेसिकली इट इज हेल्पफुल फॉर दोज पीपल जिनको विजन इम्पेयरमेंट है,
यानी कि जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए नरेटर इज हेल्पफुल, बिकॉज द पर्सन हु आर नॉट एबल टू सी एटलीस्ट दे कैन हियर, और सुन के वो चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग्स में एंड फ्रॉम हियर विल गो बैक। यहाँ पे आपको नरेटर का ऑप्शन अलग से ही मिल जाएगा एंड दिस इज अंडर द टैब ऑफ विजन। ठीक है, तो ये नरेटर ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से नरेटर ऑफ है, हमने इसे ऑन। Settings window, narrator, toggle switch, ऑन करने के on, बाद narrator dialog, skip for now, button, इसको इस तरह से Alt plus S, new natural voices are available. Narrator now offers more natural sounding voices that you can. Settings window, narrator, toggle switch, on. आप अपनी स्क्रीन पे Tap thumbnails pane, slide 15, sound tab slide, Suppose I content select this placeholder, much. text तो ये इसको box, read hollow start square करते हैं bullet. इस तरह से। It is a feature that conveys input with the help. जैसे जैसे ये मूव हो रहा है, ये आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये रेक्टेंगल मूव हो रहा है With vision impairment. पार्ट रीड करता जा रहा है। ठीक है, अब आप इस चीज Narrator dialog, यहाँ से आप skip जाएंगे, for now, इसको क्लोज but taskbar, narrator window, back to the narrator. welcome to narrator, exiting narrator. ठीक है, नरेटर आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो टैब्स हैं ये विंडोज 7 के हिसाब से बुक में बताए गए हैं, तो दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड द सेम टैब हियर। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर डिस्प्ले टैब। अच्छा, टैब्स जो हैं इसमें आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर, ये है जैसे कि कीबोर्ड के अंदर आपको स्टिकी फिल्टर और टॉगल कीज मिली, साउंड में आपको नरेटर एंड द साउंड सेंट्री ऑप्शन यू विल गेट। ठीक है, एंड इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डिस्प्ले टैब, जिसमें आपको मिलेगा हाई कंट्रास्ट का ऑप्शन। अब डिस्प्ले टैब में हाई कंट्रास्ट का मतलब क्या है? हाई कंट्रास्ट एक ऐसी एक्सेसिबिलिटी फीचर है विच इज हेल्पफुल फॉर द पीपल विद अ विजन इम्पेयरमेंट, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए हेल्पफुल है। जैसे कि मान लीजिए सम पर्सन्स आर कलर ब्लाइंडेड या पार्शियल ब्लाइंडनेस है, तो उस केस में हाई कंट्रास्ट ऑप्शन से क्या होगा कि आपके जो कलर्स हैं वो बहुत डार्क और बहुत लाइट फॉर्म में हो जाएंगे ताकि पर्सन को देखने में प्रॉब्लम ना हो। It can change the size and color of the fonts and the background so that the person is able to view that screen easily. ठीक है, अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? अगेन आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से हमने बैक करना है एंड यहाँ पे आपको विजन में ही कंट्रास्ट थीम मिलेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी हियर कंट्रास्ट थीम्स। यहाँ पे नन एक्टिवेटेड है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो और उनका जो इफेक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो। एक्वेटिक इस तरह से है, डेजर्ट इस तरह से है, दिस इज डस्क एंड दिस इज नाइट स्काई। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से नाइट स्काई लिया एंड वी क्लिक ऑन द अप्लाई ऑप्शन, तो इट विल आस्क फॉर यू टू वेट फॉर 1 to 2 सेकेंड। और आप यहाँ पे देखो बैकग्राउंड जो है वो पूरा ब्लैक हो गया और इसके ऊपर जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो इतने हाईलाइट होके आ रहे हैं कि ईजिली हम उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब वापस अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी जाएं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पीछे बहुत डार्क कलर है और आगे बहुत लाइट कलर आ चुका है, जिससे कि कंट्रास्ट मिल चुका है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डार्क एंड द लाइट कलर, सो द पर्सन इज एबल टू सी द थिंग्स वेरी क्लियरली। ठीक है, अब आप इसे अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वापस से आप यहाँ आएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे नन एंड यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, so this is how this option is going to work. The next we are having is a mouse tab. अब माउस टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है कर्सर। ठीक है, कर्सर ऑप्शन बेसिकली क्या है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है वर्टिकल लाइन, इसका कलर ग्रीन आ रहा है, तो ये कर्सर ऑप्शन है। तो इट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल विद अ विजन इम्पेयरमेंट, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, तो ये कर्सर ऑप्शन की हेल्प से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि कर्सर की अगर मुझे विड्थ इंक्रीज करनी है, थोड़ा थिन दिख रहा है तो हम इसे और थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, या फिर इसके कलर को चेंज कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम है वो इसे इजीली देख पाए। अब इस ऑप्शन को एक्टिवेट कैसे करना है, इसके लिए आप सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे यू विल सी टेक्स्ट कर्सर ऑप्शन। देखो जितने भी ऑप्शंस ऐसे हैं ना जो विजन से रिलेटेड है वो आपको इस पर्टिकुलर टैब के अंदर मिलेंगे इन विंडोज 11। बाकी अगर आप विंडोज 7 में चेक करते हैं तो वहां पे यू विल सी दिस ऑप्शंस इन द डिफरेंट टैब्स, बट हमने जो टैब्स इसमें लिखे हैं वो विंडोज 7 के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप गए टेक्स्ट कर्सर पे और यहाँ से यू कैन चूज एनी कलर। सपोज हमने ये कलर ले लिया एंड साइज आप इसका बढ़ा सकते हैं। सपोज हमने इसको यहाँ से बढ़ा दिया। इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है जो आपको यहाँ दिख रहा है,
अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। और टेक्स्ट कर्सर की थिकनेस कितनी चाहिए, अगर आप इसे यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट मोर थिक और थिन एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन वापस से आप जाएंगे, सपोज हम नोट पैड पे गए एंड नाउ यू कैन सी हियर ये कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ से हमने जो हमारा कलर थिकनेस है कर्सर की दैट हैज़ ऑल्सो चेंज, थोड़ा सा मोटा हो गया हमारा कर्सर, ठीक है। तो यहाँ से इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर हैविंग द विजन इम्पेयरमेंट। कर्सर अगर थिक होगा तो इजीली वो चेक कर पाएंगे और यहाँ से कलर की हेल्प से इंडिकेट भी हो जाएगा कि पर्टिकुलरली हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक चेंजेस फ्रॉम हियर यूजिंग द cursor option. Now the next we are having in the mouse tab is the mouse keys. Mouse keys हमारी एक ऐसी accessibility feature है that is helpful for the people who have the difficulty using a mouse. जिन लोगों को माउस को यूज करने में प्रॉब्लम है उनके लिए माउस कीज का ऑप्शन है हमारे पास। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कीबोर्ड में हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है, जो हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में रहता है, उसमें जो भी हमारी कीज होती हैं जैसे कि 4, 8, 6 और 2, 4 और 6 फॉर लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली एंड 8 एंड 2 फॉर अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली, वो काम करती हैं एरो कीज की तरह। जैसे माउस से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने कर्सर को मूव कर पॉइंटर को मूव करते हैं, जैसे इस तरह से मूव कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को माउस को यूज करने में प्रॉब्लम है वो कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आप किस ऑप्शन पे जाओगे, you will go to the mouse option under the interaction tab from in the Windows 11. माउस कीज है यहाँ पे, ये ऑफ है, इसको हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब इसमें फीचर क्या है, ओनली यूज माउस कीज व्हेन नम ब्लॉक इज ऑन। अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं तो उसको टिक मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ सी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एरो कीज की हेल्प से अप एंड डाउन मूव करते हैं। जैसे अभी मैं आई एम प्रेसिंग द एरो कीज, ये अप है, ये डाउन है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन अब माउस कीज जब ऑन कर दी तो इस केस में हमारी जो न्यूमेरिक कीपैड की जो 4, 6, 8, 2 ये 4 कीज हैं, ये इसका काम करेंगे। इसके लिए हम को ऑन करना है, तो जब आप 8 को प्रेस करेंगे तो अप जा रहा है, 2 को प्रेस किया तो डाउन आ रहा है, 6 को प्रेस किया तो राइट जा रहा है, और 4 को जितनी बार भी प्रेस कर रहे हैं उतने टाइम से लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड की जो नंबर कीज है 4, 8, 6, 2 ये हमारे एरो कीज की तरह काम करेंगी, जैसे माउस में हम अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए अगर आपने नम लॉक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया कि वो ऑन होना चाहिए, तो नम लॉक को ऑन करके रखना है, तभी आप ये कीज अप डाउन लेफ्ट राइट का वर्क करेंगी। ऑफ है तो वो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ द माउस कीज। अब हम वापस से जाएंगे और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, वी विल मेक इट ऑफ, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हम यहाँ से एक बार जाते हैं अपनी टॉगल कीज पे और उन्हें भी हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज आर मैग्नीफायर ऑप्शन, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज द मैग्नीफायर ऑप्शन। एज अ नेम सजेस्ट, मैग्नीफायर ऑप्शन एक एनलार्ज व्यू दिखाता है जो भी हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंट है उसका। अगेन इट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम है, पार्शियल ब्लाइंडनेस है, तो उनको वो बड़ा करके अगर स्क्रीन का कंटेंट दिखाएगा दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। तो इसके लिए आप यहाँ से अपने सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यू विल सी द मैग्नीफायर ऑप्शन हियर। बेसिकली ये आपको विजन में आपको दिखाई देगा, मैग्नीफायर में गए और यहाँ से आपने इसको ऑन कर लिया, ठीक है। अब ये 100% है, थोड़ा सा आप इसे बढ़ा देंगे तो जहाँ पे भी आप अपने माउस के पॉइंटर को लेकर जाओगे वहाँ पे उतना वो आपको जूम करके दिखा देगा। जैसे कि 300% है, इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से। यहाँ से आप वापस से अपने पावर पॉइंट ऑप्शन पे, जहाँ पे आपकी स्लाइड्स हैं या डेटा है, वहाँ पे आप गए, यहाँ से अपने इसको किया फ्रॉम द करेंट स्लाइड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपका कंटेंट है ये आपको एक एनलार्ज व्यू में दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द मैग्नीफायर ऑप्शन विल वर्क। वापस से आपको इसे ऑफ करना है, इसको यहाँ 100% पे ले आइए माइनस करके, वापस से आप इस ऑप्शन पे जाइए जहाँ से आपने इसको एक्टिवेट किया था और वहाँ से आपने इसे क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। दीज आर ऑल द एक्सेसिबिलिटी फीचर्स which are helpful for the people of the different types of impairments. So I hope students, now these all points, that is the topics
जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि डिस्कस करने हैं, these all are clear to you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if you find this video helpful, you can like it, share it, and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you so much.